آپریشنل عزم کے تحت بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائیاں، کلی کند عمرانی، کھڑکوچا، مستونگ سمیت مختلف علاقوں میں فتنہ ہندوستان کو بھاری نقصانات کا سامنا، دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے اور کمین گاہیں تباہ، اسلحہ اور بد دھماکہ خیز مواد برآمد، ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں مسلسل جاری رہیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تربت میں فرنٹیئر کور بلوچستان ساؤتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ محسن نقوی نے ایف سی کے جدید ہسپتال کا افتتاح کیا، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس سے ملے، او پی ڈی اور مختلف وارڈز کا معائنہ بھی کیا۔ تربت میں علاج معالجے کی جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتال کی اشد ضرورت تھی، ایف سی ہسپتال کو جلد فعال دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، محسن نقوی۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کا بزدلانہ حملہ ناکام۔ سیکیورٹی فورسز کے بروقت رد عمل میں خودکش بمبار سمیت 4 خارجی دہشت گرد جہنم واصل، دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی تباہ، حملے میں چیک پوسٹ مکمل محفوظ رہی۔ سیکیورٹی فورسز نے حملہ آوروں کا تعاقب کرتے ہوئے مزید 3 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت، غیر معمولی جرات اور بروقت کارروائی کی تعریف۔ ضلع ٹانک میں چیک پوسٹ پر حملے کی ناکام کوشش کرنے والے دہشت گرد عبرت کا نشان بن گئے۔ مانجھی خیل میں پولیس اور پاک فوج کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر جوابی کارروائی کے نتیجے میں حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ فتنہ الخوارج کے تمام دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع ٹانک کے عوام کا ہلاک دہشت گردوں پر شدید غصے کا اظہار۔ آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ، انتخابی مہم ختم، امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کے جلسے، کارنر میٹنگز اور انتخابی سرگرمیوں پر پابندی۔ میرپور ڈویژن کی 13 نشستوں پر پولنگ کل ہوگی۔ پاکستان اور کشمیر کے رشتے پر سوال اٹھانے والے گہری سازش کا حصہ ہیں۔ مہاجرین کی نشستیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، مسلم لیگ نون کا واضح موقف۔ مہاجرین نے جانوں کی قربانیاں دے کر پاکستان میں قدم رکھا تھا، ان کے احسانات کا قرض ہم کبھی نہیں اتار سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی بدستور نافذ العمل، احکامات کی عدم تعمیل پر 2 جہازوں کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے 12 بحری جہازوں کا راستہ تبدیل کر دیا گیا۔ امریکی فوج نے بحیرہ عرب میں کوموروس کے پرچم بردار آئل ٹینکر کی جانچ پڑتال کے بعد جہاز کو اپنا سفر جاری رکھنے کی اجازت دی۔ سینٹکام کا سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان۔ ایران کا اسرائیل کو جنگ میں دوبارہ کودنے سے انتباہ۔ اسرائیل جانتا ہے کہ اگر وہ جنگ میں پھر سے شامل ہوا تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اسرائیل کی جنگ میں شمولیت پر اس کو آفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کی برطانیہ کو بھی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے پر دھمکی۔ برطانیہ جنگ میں امریکہ کی حمایت کرتا ہے تو وہ یقینی اور جائز ہدف ہوگا۔ ترجمان پاسداران انقلاب۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کلاس سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال اور خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ بحیرہ کیسپیئن میں ایرانی تجارتی جہاز پر یوکرینی حملے کی مذمت۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سلامتی کونسل۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ کشمیر، ڈیرہ غازی خان، شمال مشرقی بلوچستان، سندھ، گوجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، گجرات، ساہیوال، سرگودھا، جھنگ اور فیصل آباد میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے خدشے کے پیش نظر سیاحوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ وزیر آباد میں 10 گھنٹے میں ریکارڈ توڑ 215 ملی میٹر بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب، معمولات زندگی متاثر۔ اکاڑا میں 117 ملی میٹر بارش سے شہری زندگی درہم برہم۔ گجرات میں 2 گھنٹوں کے دوران 101 ملی میٹر موسلا دھار بارش۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ مرید کے منالہ دیکھ کے بند ٹوٹنے سے کوٹلی، کوروٹانہ، تاجپورہ اور ڈالا واہگہ سمیت درجنوں دیہات زیر آب۔ ہزاروں ایکڑ پر دھان کی فصل تباہ۔ سیلابی پانی سادھو کے، جلال پور اور بھٹیاں والا میں داخل۔ ریسکیو اور نکاسی آب آپریشنز جاری۔
पंजाब भर में मानसून बारिशें जारी। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर 1000 से ज्यादा मशीनें और हजारों वासा वर्कर्स मैदान में। बारिशी पानी की 300 जदीद कैमरों से डिजिटल मॉनिटरिंग जारी। इंतजामिया पीटीएम में रेस्क्यू 1122 और वासा का मिसाली इश्तराक। हर शहर में मानसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप कायम। ऑपरेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते से मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ अजला में छतें, आसमानी बिजली गिरने और लैंड स्लाइडिंग से जानी और माली नुकसान। 4 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। हंगू के इलाके दरसमन, दीर लोयर के इलाके मैदान लाल किला में छतें गिर गईं। चित्राल लोयर की वादी रंबोर में आसमानी बिजली गिरने के वाक़े में 20 से जायद मवेशी हलाक। दरिया चनाब में हेड कादराबाद में दरमियाने दर्जे और हेड खान की मराला, तरीमू और चनियोट पुल पर निचले दर्जे का सैलाब। पलकू नाला वजीराबाद में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोसा, दरिया डावी में बलोकी और सदनाई। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। नाला डेक और पलखू नाला कैंट पुल पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। डेरा गाजी खान, शिमाली बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बरसाती नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। एनडीएमए की सैलाब से मुतासरा इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कराची में मानसून की पहली बारिश। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से जल थल। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। वजीर आला हाउस कराची में रेन इमरजेंसी डेस्क कायम। उर्दू फीचर फिल्म ऐनक वाला जिन की सिनेमा घरों में नुमाइश जारी। ये मसनूई जहानत से तैयार करदा पहली मुल्की फिल्म है। मसनूई जहानत से तैयार करदा फिल्म उम्र के हर हिस्से से ताल्लुक रखने वालों के लिए दिलचस्पी का बायस है। पीटीवी की डिजिटल और ब्रॉडकास्ट हुकूक के साथ फिल्म की मुल्क गिर कामयाबी के लिए शानदार तशहीर। मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री में नया बाब रकम। इस्लामाबाद में वस्ती एशियाई वॉलीबॉल चैंपियनशिप 10वां मैच। श्रीलंका ने काजाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान अपने चौथे मैच में आज उज्बेकिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगा। इवेंट में पाकिस्तानी टीम अब तक अपने तीनों मैच जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त। चैंपियनशिप पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। रिटर्न होने के बाद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज तरोबा में पहले टेस्ट मैच का दूसरा रोज मेजबान टीम अपनी पहली इनिंग्स में बैटिंग दोबारा शुरू करेगी। वेस्ट इंडीज ने पहले रोज खेल के इख्तिताम पर 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 194 रन बनाए। क्यूम होश 83 और शेख होप 39 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मान के शहर मस्कत में मेंस एशियन हॉकी 5S चैंपियनशिप 2026। पाकिस्तान मेंस हॉकी 5S टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया। कौमी टीम ने FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी टीम का टूर्नामेंट के दौरान गैर मामूली महारत, अज़्म, डिसिप्लिन और फाइटिंग स्पिरिट का मुजाहिरा। आदिल को टूर्नामेंट में उनकी शानदार कारकर्दगी, क़यादत और बेहतरीन खेल की बदौलत प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। फ्रांस के क्वेटन हॉलिस ने ATP ऑस्ट्रियन ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में दफाई चैंपियन काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बबलिक को शिकस्त दी। हॉलिस ने बबलिक को स्ट्रेट सेट्स में मात देकर करियर का पहला ATP टूर टाइटल जीता। आलमी नंबर 83 हॉलिस ने बबलिक को 6-4 और 7-6 से हराया। शैंगजू में चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट मेंस एंड विमेन सिंगल्स का फाइनल लाइनअप मुकम्मल। मेंस सिंगल्स का फाइनल ताइवान के चुटाइन चैन और फ्रांस के तोमा पोपोव के दरमियान होगा। तोमा पोपोव सुपर 1000 टूर्नामेंट मेंस सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं। खवातीन सिंगल्स फाइनल में चीन की शांग यूफई और जापान की अकाने यामागुची मद्दे मुकाबिल होंगी। सऊदी अरब के शहर जद्दा में बॉक्सिंग की द कम बैक बाउट। साबिक हैवी वेट चैंपियन बरतानवी बॉक्सर एंथनी जोशुआ ने अल्बानिया के क्रिस्टियान परेंगा को नॉकआउट कर दिया। जोशुआ ने परेंगा को दूसरे राउंड में नॉकआउट किया। एंथनी जोशुआ दिसंबर में नाइजीरिया में ट्रैफिक हादसे के बाद पहली मर्तबा रिंग में उतरे थे। बरतानिया में एलियो गोल्फ टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलियाई गोल्फर लुकास हुबर्ट की बर्तरी बरकरार। लुकास हुबर्ट ने आखिरी रोज 3 स्ट्रोक्स की सबकत हासिल कर ली। हुबर्ट ने पहले रोज 11 अंडर पार 61 खेलकर कोर्स रिकॉर्ड भी कायम किया था।
برائسن ڈیشمبو 4 अंडर पार 68 खेलकर दूसरी पोजीशन पर मौजूद, जबकि इंग्लैंड के टायरल हैटन 10 अंडर पार के साथ तीसरे नंबर पर। और 21 मराहिल पर मुश्तमिल टूर डी फ्रांस साइकिल रेस 20वां मरहला एक्वाडोर के रिचर्ड कारपास के नाम रहा। कारपास ने 170.9 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 59 मिनट और 39 सेकंड्स में तय किया। रिचर्ड कारपास के करियर की ये 10वीं ग्रैंड टूर स्टेज फतह है। स्लोवेनिया के तादेज पुगाचर 5 मरतबा ग्रैंड इवेंट जीतने का रिकॉर्ड बराबर करने से एक स्टेज की दूरी पर मौजूद। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। खेल और खिलाड़ियों की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन अल-आज़म के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। बलोचिस्तान में कलीकंद, इमरानी, खटकुचा, मस्तौंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में फितनल हिंदुस्तान को भारी नुकसानात का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन अल-आज़म में दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने और कमीनगाहों को तबाह करके असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन अल-आज़म में अब तक फितनल हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। बलोचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल खवारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त रद्द अमल में एक खुदकुश बमबार समेत 4 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए, जबकि धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी को भी तबाह कर दिया गया। हमले में चेक पोस्ट मुकम्मल महफूज रही। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गैर मुतजलसल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए भारतीय हमलावरों का ताक़ुब किया, जिसमें से मजीद 3 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलकत आसिफ अली सरदारी ने जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। सदर ममलकत ने बरवक्त बहादुराना और पेशावराना कार्रवाई को सराहते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी क़ुव्वत और अज़्म के साथ कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाम को बरवक्त और फैसला कुन कार्रवाई से नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाने और 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत, गैर मामूली जुर्रत और बरवक्त कार्रवाई को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे बहादुर जवानों ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाकर एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सलामती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत के साथ जारी रखेंगे। जिला टांक में चेक पोस्ट पर हमले की नाकाम कोशिश करने वाले फितनल ख्वारिज के दहशतगर्द इबरत का निशान बन गए। टांक के इलाके मांझी खेल में वाक़ पुलिस और पाक फौज की मुश्तरका चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में हमला नाकाम बना दिया गया और फितनतुल ख्वारिज के तमाम दहशतगर्द मारे गए। टांक के मुकामी बाजार में मारे जाने वाले हमलावरों की लाशें लाए जाने पर शहरियों की जानिब से नफरत का इजहार किया गया। जिला टांक के अवाम ने फितनतुल ख्वारिज के हलाक दहशतगर्दों पर शदीद गुस्से, बेजारी और लानत मलामत का इजहार किया। मुसलसल बदमनी और तशद्दुद से मुतासरा मुकामी आबादी अब ऐसे नासिर के खिलाफ खुलेआम अपनी शदीद गुस्से और बेजारी का इजहार कर रही है। अवाम की जानिब से ये शदीद रद्दमल मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को खराब करने वाले अनासिर के लिए एक वाज़े और इबरतनाक पैगाम की हैसियत रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तुर्बत में फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का दौरा करके एफसी के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने OPD, मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI, CT स्कैन रूम्स और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया और हस्पताल को मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल करने पर IGFC बलोचिस्तान साउथ और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि FC हस्पताल को इतनी जल्द फाल देखकर बहुत खुशी हुई। तुर्बत की मकामी आबादी को भी इलाज मुआलजे की यह बेहतरीन सहूलत मुयसर हो सकेगी।
उन्होंने डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को भी दुखी इंसानियत की भरपूर खिदमत की तलकीन की। इस मौके पर IGFC बलोचिस्तान साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान ने वज़ीर दाखिला को फोर्स की पेशेवराना तरबियत और फील्ड ऑपरेशन से मुतालिक भी ब्रीफ किया। मोहसिन नकवी ने FC बलोचिस्तान साउथ की पेशेवराना तैयारियों को सराहते हुए फितनतुल हिंदुस्तान समेत तमाम कलअदम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर FC बलोचिस्तान नॉर्थ को खराज तहसीन भी पेश किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। आज़ाद कश्मीर में 1985 से यहाँ इंतखाबात और पार्लिमानी निज़ाम में तसलसल है। इंतखाबात कब कब हुए और किस किस जमात ने कामयाबी हासिल की, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान अपनी रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत का बाकायदा सफ़र 1985 से शुरू हुआ और पहली मरतबा पार्लिमानी तर्ज पर इंतखाबात कराए गए, जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कामयाबी हासिल की और इस निज़ाम के तहत सरदार सिकंदर हयात खान वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इस हुकूमत ने अपनी आइनी मुद्दत पूरी की। 1990 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की, लेकिन सिर्फ एक साल बाद ही मुंतखब वज़ीर आज़म मुमताज़ हुसैन राठौर ने इत्तेहादियों के रवैयों से दिल बर्दाश्त होकर असम्बली तहलील कर दी। 1991 में दोबारा इंतखाबात करवाए गए और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान वज़ीर आज़म बने। 5 साल बाद 1996 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी नए वज़ीर आज़म बने। 2001 के इंतखाबात में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक मरतबा फिर फातेह ठहरी। सरदार सिकंदर हयात खान दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने। 2006 के इंतखाबात में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मुसलसल दूसरी मरतबा कामयाबी हासिल की और सरदार अतीक अहमद खान वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इस असम्बली ने अपनी आइनी मुद्दत तो पूरी की, मगर मेंबरान असम्बली का जोर अदम एतमाद की तहरीकों पर रहा। पहले सरदार याकूब खान, फिर राजा फारूक हैदर खान और आखिर में एक मरतबा फिर सरदार अतीक अहमद खान वज़ीर आज़म बने। 2011 के इंतखाबात में कामयाबी का कुर्रा पीपल्स पार्टी के नाम निकला और चौधरी अब्दुल मजीद वज़ीर आज़म बने। 2016 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की और राजा फारूक हैदर खान ने अनान हुकूमत संभाली। 2021 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई। ये 5 साल इन हाउस तब्दीलियों का शिकार रहा और 3 वज़ीर आज़म तब्दील हुए। आज़ाद कश्मीर का हुस्न ये है कि 1985 से आज तक यहाँ जमहूरी अमल एक तसलसल के साथ परवान चढ़ा है। इस अरसे में पाकिस्तान में कई मरतबा जमहूरियत की बिसात अगर लपेटी भी गई तो उसका असर आज़ाद कश्मीर पे नहीं पड़ा। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के लिए एक बार फिर मैदान सज चुका है और पहले मरहले में मीरपुर में इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। आज़ाद कश्मीर में जी हस्ब रिवायत इंतखाबात का माहौल बन चुका है, इंतखाबी रंग माहौल पर तारी हो चुका है। तमाम जो सियासी जमातें हैं और जो उम्मीदवार हैं वो अवाम तक जा रहे हैं। पहले तो नौजवान बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे चेहरे आए जो रिवायती सियासतदान नहीं है, बल्कि पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस सिस्टम को तब्दील करने के हवाले से एक नया अज़म रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस दफा जो है नए चेहरे आगे आए, यूथ आगे आए, अपना जमहूरी हक इख्तियार करें, वो अपने वोट की ताकत से ऐसे हकीकी नुमाइंदे को आगे लाएं जिसकी वजह से आप अपने कोई भी मुतालबात पूरे कर सकें। और यूथ के मसाइल को एक यूथ ही समझ सकती है और असम्बलियों का रास्ता बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि आइन और कानून के जरिए ही इन मसाइल का हल हो सकता है। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने को है, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी तारीख में एक और 5 साल का इजाफा होने को है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात में नौजवान उम्मीदवारों की भरपूर शिरकत को कश्मीर की सियासत के लिए खुशाइन करार दिया जा रहा है। नौजवानों का इंतखाबात में हिस्सा लेना शफाफ तर्ज हुक्मरानी और मसाइल के हल में मददगार साबित होगा। नौजवान उम्मीदवारों का कहना है कि जमहूरियत की मजबूती के लिए अवाम की भरपूर इंतखाबी शिरकत नागुज़ीर है। शहरी अपने वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि वोट आइनी और जमहूरी ताकत है। हकीकी अवामी नुमाइंदों का इंतखाब वोट से ही मुमकिन है। अवामी मसाइल का मौसर हल अवाम के एतमाद से मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही मुमकिन है। इंतखाबी मैदान में नौजवानों की बढ़ती हुई नुमाइंदगी सियासी अमल में अवामी दिलचस्पी और जमहूरी शऊर की अक्कास है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान और कश्मीर के लाजवाल रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं, मुहाजिरीन की नशिस्तें कभी ख़त्म नहीं होंगी, वो एक गहरी साजिश का हिस्सा है।
सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि महाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा करने वालों की आधी से ज़्यादा आबादी बैरून मुल्क मुकीम है। उन्हें घर बैठे आज़ादी मिली है, इसीलिए उन्हें कुर्बानियों का एहसास नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में महाजिरीन की नशिस्तें कभी ख़त्म नहीं होंगी। आज़ाद कश्मीर और जम्मू के महाजिरीन ने 2.5 लाख जानों की कुर्बानियाँ देकर और खून की लकीर अबूर करके पाकिस्तान में कदम रखा था, जिसके एहसानात का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। उन्होंने एक्शन कमेटी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो ज़बान एक्शन कमेटी के कुछ अरकान बोल रहे हैं वो तो भारत भी नहीं बोलता, इसका फ़ायदा भारत को पहुँच रहा है। वज़ीर ममलकत ख़जाना और रेलवे बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के पास कारकर्दगी है, हम वो बता रहे हैं, खाली हाथ वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जेहलम में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से तकरीब से खिताब में वज़ीर ममलकत ने कहा कि हम नफरतें नहीं फैलाते बल्कि तरक्की की बात करते हैं, वादे पूरे करते हैं। बिलाल अज़हर कियानी का कहना था कि पाकिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर, जब भी शेर पर मोहर लगी मुल्क और आवाम को तरक्की मिली। महाजरीन जम्मू कश्मीर को अपनी नशिस्तों के हक के लिए शेर के निशान पर मोहर लगाना होगी। इस मौके पर मुख्तलिफ बरादरियों और अमायदीन इलाका ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात के लिए पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की तरह सूबा सिंध में भी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी महाजरीन के लिए 2 मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग होगी। रिपोर्ट करेंगे सुहेल जमाली। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन के लिए 12 नशिस्तें मखसूस हैं, जिनमें से 2 नशिस्तों के वोटर सूबा सिंध में आबाद हैं। इन 2 हलकों में LA 34 जम्मू 1 और LA 40 वादी कश्मीर 1 शामिल हैं। LA 34 जम्मू 1 में 19,008 वोटर्स हैं, जिनमें 10,315 मर्द और 8,693 खवातीन शामिल हैं। LA 40 वादी कश्मीर 1 में 4,897 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें 2,401 मर्द जबकि 2,496 खवातीन शामिल हैं। तमाम बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार इलेक्शन में मौजूद हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी और दूसरी जमातें शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराची के मुख्तलिफ अजला के अलावा हैदराबाद, सक्खर और सूबे भर में भी पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं ताकि वोटर्स को सहूलत फराहम की जा सके। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमले की तरबियत का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात भी अलाट कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की बाज़ाब्ता फहरिस्त कराची से जारी कर दी है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने मुसलसल सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान करीबी और बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते में तामीरी किरदार, अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा किया। अमरीकी फ़ौज की मरकज़ी कमान सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बदस्तूर मुकम्मल तौर पर नाफिज है। एक्सपर्ट जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी फ़ौज ने अहकामात की तामील न करने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया, जबकि नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 12 बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील किया गया। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए 2 जहाज़ों की तलाशी ली गई। बहिरा अरब में कोमोरोस के परचम बरदार ऑयल टैंकर की जाँच पड़ताल के बाद तेल बरदार बहरी जहाज़ को सफ़र जारी रखने की इजाज़त दे दी गई। खलीज ओमान में मोज़म्बिक के परचम बरदार ऑयल टैंकर लावीन को नाकारा बना दिया गया, क्योंकि उसके अमले ने मुतादिद बार नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की और अमरीकी अफवाज की बार बार की तनबीह को नजरअंदाज किया। वाज़ेह रहे कि अमरीका ने 14 जुलाई से इन जहाज़ों की नाकाबंदी शुरू कर रखी है। उधर ईरान ने इसराइल को जंग में फिर से कूदने से खबरदार कर दिया है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल जानता है कि अगर वो जंग में फिर से शामिल हुआ तो ईरान उसके साथ क्या सलूक करेगा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि ईरान की तवज्जो इसी चीज़ पर मरकूज है, इसराइल जंग में फिर से शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बरतानिया को भी खबरदार कर दिया कि अगर उसने जंग में अमरीका की हिमायत की तो वो यकीनी और जायज़ हदफ बन जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले बरतानवी फौजी अड्डे या तंसीबात को ईरान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से जायज़ अस्करी हदफ तस्वुर किया जाएगा। वाशिंगटन ने ईरान के खिलाफ जारी जंगी कार्रवाइयों को आर्जी तौर पर रोक दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मजीद कशीदगी बढ़ाने के मंसूबे महदूद दिफाई ज़खायर, खासतौर पर पैट्रियट मिसाइल निज़ाम के इंटरस्पेटस की कमी के बायस मुतासर हो रहे हैं।
नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा अमूर की सरबराह काया कल्लास से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान बहिरा कैस्पियन में ईरानी तजारती जहाज़ पर यूक्रेनी हमले की मज़म्मत की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तरीन इलाक़ाई सूरत हाल और ख़ित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, यूरोपीय यूनियन और आलमी बरादरी से रद्द-ए-अमल का मुतालबा किया और कहा कि इस मुजरिमाना इक़दाम के ज़िम्मेदारों और उनके हामियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अब्बास अराग़ची और काया कल्लास ने अपना हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने और सूरत हाल को काबू में रखने के लिए सिफारती इक़दामात इख्तियार करने की ज़रूरत पर भी बातचीत की। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी के बाद से ईरानी हमलों में 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। ईरानी खबर एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जमान जनरल हुसैन ने कहा है कि अमरीकी हलाकतों से मुतालिक ट्रंप इंतजाम के आदाद-ओ-शुमार सरासर झूठ हैं। ईरान के जवाबी हमलों में ज़ख्मी होने वाले अमरीकी फ़ौजियों की तादाद कहीं ज़्यादा है। उन्होंने दावा किया कि ईरानी हमलों में खित्ते में अमरीका के 8 फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया, जबकि एक मुकाम पर मौजूद 20 हिफाजती शेल्टर्स भी तबाह कर दिए गए। तर्जमान ने कहा कि अमरीकी हुकूमत को सहाफ़ियों को तबाह होने वाले अमरीकी फ़ौजी मराकज़ का दौरा करवाना चाहिए ताकि वो खुद अंदाज़ा लगा सकें कि कितने अमरीकी फ़ौजी मारे गए। नाज़रीन, पंजाब भर में मानसून बारिशों के दौरान निकासी आपके लिए वासा और मुतल्लिका इदारों का ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जदीद मशीनरी, हज़ारों वर्कर्स और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के ज़रिए बारिशी पानी की सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। वासा के मुताबिक 1000 से ज़ायद मशीनें फील्ड में मौजूद हैं, जबकि 300 जदीद कैमरों और AI बेस्ड सिस्टम के ज़रिए पानी जमा होने वाले मकामात की निशानदेही की जा रही है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अंडरपासेस, सीवरेज लाइनों और ड्रेन्स की सफाई के इक़दामात जारी है। गुजरात, सियालकोट, लाहौर और रावलपिंडी के शहरियों ने निकासी आब के फौरी इक़दामात को सराहते हुए कहा है कि कई दिनों का काम चंद घंटों में मुकम्मल होता नजर आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब से मानसून की ताकतवर हवाएं जनूबी और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। इसलिए 27 जुलाई तक थरपारकर, उमरकोट, बदीन, टंडू मोहम्मद खान, टंडो लयार, हैदराबाद, सांगड़, शहीद बनज़ीराबाद, कश्मोर, जैकबाबाद, शिकारपुर, सखर और खैरपुर समेत सिंध के दीगर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ से थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी, कलोई, डेपड़ों के अलावा उमरकोट में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से इन इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया है। तालाब और कुएँ भर गए हैं और पानी की सतह ऊपर आ गई है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में एमरजेंसी रेन डेस्क कायम कर दिया है। रेन एमरजेंसी से मुताल्लिक किसी भी इतला के लिए टोल फ्री नंबर 0800919115 पर कॉल की जा सकती है। आवाम के लिए पब्लिक कंप्लेंट सेल के नंबर्स 02199202047, 02199207349 और 02199207568 पर भी कॉल की जा सकती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे भर के बल्दियाती इदारों, वाटर और सीवरेज अथॉरिटीज़, कमिश्नर्स और DCs को मुतहर्रिक रहने की हिदायत की है। नाज़रीन, NDMA के नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में दरियाओं और नदी नालों में बहाव की ताज़ा तरीन सूरत हाल जारी कर दी है। दरियाए चराब में खानकी, कादराबाद, चनियोट पुल और पलखो नाला वज़ीराबाद में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोसा, दरियाए चराब में मराला और तरीमो, दरियाए रावी में बलोकी और सदनई, जबकि दरियाए काबुल में नौशारा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है।
नाला 1 और पलखू नाला कैंट पुल पर कम दर्जे का सैलाब है। डीजी खान और राजनपुर के पहाड़ी नाले मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। आइंदा 24 घंटे के दौरान दरियाए चनाब में मराला, खानकी, कादराबाद और चनियोट पुल के मकामात पर पानी के बहाव में इजाफा और डीजी खान के पहाड़ी नदी नालों, खैबर पख्तूनख्वा के बरसाती नदी नालों और शुमाली बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। आइंदा 24 से 48 घंटे के दौरान गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, झंग, मुल्तान, हाफिजाबाद और लाहौर के शहरी इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। NDMA ने मुतल्लिका इदारों को हसास मकामात की मुसलसल निगरानी, हंगामी टीमों की तैयारी और मुमकिना बंद शाहराहों की फौरी बहाली के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की है। दरियाई रावी में सैलाबी पानी से ज़िला ननकाना साहब के गांव वड़ाच में ज़मीनी कटाव का सिलसिला तेज़ी से जारी है। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मुतासरीन और उनके माल मवेशी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जावेद अहमद मुआविया की रिपोर्ट देखिए। दरियाई रावी के किनारे वाक़या 350 से ज्यादा घरों पर मुश्तमिल गांव वड़ैच में सैलाबी पानी की वजह से जमीनी कटाव तेजी से जारी है और अब तक कई एकड़ जरी जमीन दरियाबुर्द हो चुकी है। मजीद कटाव के खतरे के पेश नजर मकामी अफराद अपने माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। ज़िले इंतजामिया की तरफ से मुतासरा गांव में 2 मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जहां मुतासरीन को बुनियादी सहूलियात और जरूरी इमदाद फराहम की जा रही है। पहले से ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड हैं, हमारे रिसोर्सेज से पहले से ज्यादा हैं। इन केस ऑफ एनी अनटवर्ड सिचुएशन लोगों को किसी किस्म की कोई इनकन्वीनियंस किसी सूरत में हम नहीं आने देंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से गाँव को मजीद नुकसान से बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर हिफाजती बंद बनाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है, जिसका मकसद जमीन के मजीद कटाव को रोकना और मकामी आबादी को मुमकिन नुकसान से महफूज रखना है। 10 करोड़ का फंड जो है ना वो आपका इरिगेशन को मिल गया है। इंशाल्लाह जल्द अनकरीब ही वो अपना काम शुरू करेंगे। इससे हमारी 4 एकड़ जमीन अभी दरिया में चली गई है और उसके बाद जो बची है वो भी जा रही है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इंतजाम किया जाए, बन या टी कोई भी है सिचुएशन उसको संभाला जाए। तमाम मुतल्लिका इदारे गाँव के लोगों के जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाने और किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। ज़िली इंतजामिया की तरफ से सलाह मुतासरा इलाकों के लोगों से अपील की गई है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। और राज़ीन मानसून बारिशों के बाद शेखुपुरा में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया अलर्ट कर दी गई है। बरसाती नालों, नहर, अपर चनाब और दरियाई रावी में तुग़यानी के खदशे के बायस फिरोज़बाला, मुरीद के और शर्कपुर में 7 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना अदिल तसव्वुर ने रेस्क्यू इदारों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और हिफाजती पुश्तों का जायज़ा लिया। इंतज़ामिया ने कमज़ोर पुश्तों को मजबूत बनाने और तमाम हसास मकामात की 24 घंटे निगरानी की हिदायत जारी कर दी हैं। पसरूर में दरमियाने दर्जे के सैलाब के बायस कई मकामात से नाला डेक बंद, मुतासर सैलाब पानी ज़री ज़मीनों में दाखिल, धान और चाराजात की फसलें बुरी तरह मुतासर हो गई हैं। राना कैसर हयात रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पसरूर में नाला डेक में दरमियाने दर्जे के सैलाब के बायस गरड़ बरियार और उद्दो फतह के करीब कच्चे बंद में शगाफ पैदा हो चुका है, जिसके नतीजा में सैलाबी पानी उद्दो फतह, गरड़ बरियार और मेहदीपुर के करीब ज़री ज़मीनों में दाखिल हो चुका है। सैलाबी पानी के बायस सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल धान और चाराजात की फसलों को नुकसान भी पहुँचने का खदशा है। अगर नाला डेक में पानी की सतह मजीद बुलंद हुई तो रुपो वाली, काजी पहाड़ंग, दौलतपुर और नाला डेक से मुल्हिका दीगर दर्जनों नशीबी देहात में भी सैलाबी पानी दाखिल होने का खतरा है। जी साडा इत्थे ना नाला डेक च पानी आया है तो 3-4 जगह तो ना साडा बंद टूट चुका है और असीं फसलां अपनियां मुकम्मल ला चुके सां, जिहदा साडा ना सारा नुकसान होया है। इसकी वजह से हमारा अगले जो गाँव है उनके साथ ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो चुका है और धान की फसल और जो मुख्तलिफ चाराजात थे वो भी शदीद मुतासिर हुए हैं। दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर मुकामी इंतजामिया ने मुमकिना हंगामी सूरत से निपटने के लिए चहूर, काला पहाड़ और 5 मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कायम करने और महकमा सेहत, रेस्क्यू 111, 222 और दीगर मुतल्लिका अदारों को मुकम्मल तौर पर फील्ड में रहने की हदायत भी जारी कर दी हैं।
मेवाली डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास काठिया ने मूछ के नवाही इलाके मोहम्मद शरीफ वाली का दौरा किया और उन्होंने दरियाई सिंध के हिफाजती बंद की मजबूती के तामीराती कामों का जायजा लिया और फ्लड रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने दरिया के ज़मीनी कटाव वाले मकाम का भी जायजा लिया और मकामी लोगों से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने। इस मौके पर ADCR ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया कि गुज़श्ता शब हिफाजती बंद में शगाफ की तरह मिलते ही ज़िले इंतज़ामिया ने रात गए ज़रूरी मशीनरी और अमले को मौके पर पहुँचाकर बंद की मजबूती पर काम शुरू कर दिया है। रेस्क्यू 1122 की एमरजेंसी टीमें ज़रूरी साजो सामान के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर अलर्ट हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इलाके में 3 मकामात पर फ्लड एमरजेंसी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पाकपतन और बहावल नगर की ज़िले इंतज़ामिया ने दरियाए सतलज पर मुश्तरका फ्लड मोग एक्साइज का इनेकाद किया, जिसमें मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने की तैयारियों का अमली मुजाहरा किया गया। फ़र्जी मश्क के दौरान मुतासरा आबादी के महफूज इनखला, सर्च एंड रेस्क्यू, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, रिलीफ कैंपों के क़याम और इदारों के दरमियान मौसर राबताकारी का अमली मुजाहरा किया गया। रेस्क्यू 1122, पुलिस, महकमा सेहत, लाइफ स्टाक और दीगर इदारों ने भी अपनी पेशा वराना सलाहियतों का कामयाब मुजाहरा किया। और नाज़रीन, आइंदा 12 घंटे के दौरान सिंध, मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और जनूबी बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि जनूब मशरकी सिंध और जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब, ज़ेरीन सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और ज़ेरीन बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें। सदर आसिफ अली सरदारी ने मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू और अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि यह अहम संग मील दोनों मुल्कों के दरमियान 6 दहाइयों से ज़ायद कायम दोस्ताना ताल्लुकात, बाहमी एतमाद और करीबी ताउन की अक्कासी करता है। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान मालदीव के साथ अपने बिरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि बाहमी ताउन का फ़रोग दोनों मुल्कों के अवाम की अमन, तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की मुआवनत से बंजर ज़मीनों की बहाली, जदीद ज़राई निज़ाम के फ़रोग और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था कि उन्हें रखुलामा में ज़मीन फराहम की गई, जहाँ 1100 एकड़ रकबे पर जदीद ज़राई तरीकों से गंदम, चना और कैनोला की फसलें काश्त की जा रही हैं। 2 बरस में 50% रकबा काबिल काश्त बनाया जा चुका है। गुलाम मुस्तफ़ा का कहना है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वतन में सरमायाकारी के मौसर मौक़े फराहम कर रहा है। वज़ीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शिजरा मनसब ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम से वोट मांगा है और आज़ाद कश्मीर के अवाम भी पार्टी की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेंगे। ननकाना साहब में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि PTI ने मुतादिद मौक़े पर ऐसे इक़दाम किए जिनसे रियासत को नुकसान पहुंचा। बानी PTI के हमशीरा का हालिया बयान मुल्क दुश्मनी है, जिसे भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी किसी को रियासती इदारों की बदज़बानी की इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान दुश्मन और रियासत मुखालिफ अनासिर अपनी हर साजिश में नाकाम होंगे। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड पर आलमी सतह पर तशवीश में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ख़वातीन के हुकूक, मुआशी बहरान और इंसानी सूरत हाल पर बैनुल अक़वामी इदारों और शख्सियात ने सख्त खदशात का इजहार किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे अशफाक खान अपनी इस रिपोर्ट में। I mean, there's really just no facilities here. तालिबान हुकूमत के इक़्तिदार के 5 साल मुकम्मल होने के बावजूद अफगानिस्तान बदस्तूर संगीन इंसानी बहरान से दो चार है। बरतानी नशरियाती इदारे के मुताबिक तालिबान ने ख़वातीन की तालीम, नकलो हरकत और बुनियादी आज़ादियों पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भूख का बढ़ता हुआ बहरान लाखों अफगान शहरियों को मुतासर कर रहा है। The restriction on education beyond grade 6 is a separate issue. जबकि सेहत की नाकामी सहूलियात आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रही है। बरतानी नशरियाती इदारे ने अफगानिस्तान में बढ़ती हुई बेरोजगारी को भी एक संगीन चैलेंज करार दिया है। दूसरी जानिब अफगान खवातीन और इंसानी हुकूक के लिए साबिक अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा रीना अमीरी का कहना है कि तालिबान की सख्त गैर पॉलिसियों ने मुल्क में इंसानी हुकूक के बहरान को मजीद गहरा कर दिया है। इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर बढ़ती हुई आलमी तनकीद इस बात की निशानदेही करती है कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात पर बैनुल अक़वामी तशवीश बरकरार है। मोहम्मद इशफाक खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
भारत में जारी कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की गूंज। भारतीय नौजवान भी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की सलाहियतों के मुआतरफ निकले। वायरल वीडियो में भारतीय शहरी कह रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक तलबा पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के गर्विदा हैं। पाकिस्तान ने बुनियानो मरसूस में मोदी को तारीखी शिकस्त से दो चार किया। वायरल वीडियो में भारतीय शहरी मोदी हुकूमत के जाबिराना रवैये पर शदीद बरहम दिखाई दिए। एहतजाज में शरीक भारतीय शहरी ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के हक में नारे लगाए। नाज़रीन, रहीम यार खान में इस साल 3,77,000 एकड़ पर कपास काश्त की गई। किसानों की सहूलत के लिए 5 किसान सहूलत सेंटर कायम किए हैं, जहां से किसान ज़रूरी मुदाखिल रियायती निर्खों पर खरीद रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे अशफाक अहमद। रहीम यार खान में इस साल 3,77,000 एकड़ पर कपास की काश्त की गई है, जिसकी बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने सहूलत सेंटर कायम किया है, जहाँ कपास के काश्तकारों को ज़रिए अद्वियात, खादें, स्प्रे मशीन और दूसरे मुदाखिल रियायती नरखों पर फराहम किए जा रहे हैं। सहूलत सेंटर पर महकमा ज़राअत के अफसरान ज़रूरी माहिरीन किसानों को मुफीद मशवरे देने के साथ इन्हें रहनुमाई भी देते हैं। कपास का हर काश्तकार हुकूमत पंजाब की तरफ से दी जाने वाली इस सहूलत से फायदा उठा रहा है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में 5 सहूलत सेंटर जो है वो इस वक्त ऑपरेटिव है, जिनमें से मेन जो है ये रहीम यार खान का है। इसी तरह बाकी तहसीलों में भी अवेलेबल है। रियायती कीमतों पे ये सारी दे रहे हैं अद्वियात और बाकी चीज़ें भी। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे किसान फ़ायदा उठाएंगे और जिससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर होंगे। मुल्क की मईशत में कपास को बुनियादी अहमियत हासिल है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली, नाकस बीज और गैर मियारी कीड़े मार दवाओं की वजह से मुल्क भर में कपास की पैदावार में कमी हो रही थी। पंजाब हुकूमत की तरफ से सहूलत सेंटर के क़याम से कपास की फी एकड़ पैदावार में इजाफा मुमकिन होगा। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुल्तान समेत कपास की काश्त वाले इलाकों में कायम किसान सहूलत सेंटर्स पर काश्तकारों को मयारी ज़रूरी अद्वियात मार्केट के मुकाबले में 30% कम निर्खों पर फराहम की जा रही हैं, जबकि जदीद ज़रूरी रहनुमाई भी एक ही छत तले दस्तयाब है। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। मुल्तान डिवीजन समेत जनूबी पंजाब की कपास उगाने वाली तहसीलों में अब किसानों के लिए सहूलतों का नया दौर शुरू हो चुका है। वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर निगरानी 13 तहसीलों में किसान सहूलत सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां काश्तकारों को एक ही छत तले मियारी पेस्टिसाइड्स, स्प्रे मशीनरी और तकनीकी रहनुमाई फराहम की जा रही है, वो भी रियायती निर्खों पर। हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा इकदाम है। हर तहसील के अंदर ये एक किसान सहूलत सेंटर बनाया गया है और इसकी जो टाइमिंग है सुबह 9 से लेकर शाम 4 बजे तक है और इसके अंदर पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और ज़रूरी मशीनरी भी दस्तयाब है और मार्केट से आसान कीमत पर। काश्तकारों का कहना है कि मार्केट से महंगी अद्वियात खरीदना पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ सस्ते दामों मियारी स्प्रे और मशवरा भी साथ मिल रहा है। किसान सेंटर पे आया हूँ, यहाँ से स्प्रे वगैरह मैं पहले भी पिछले साल भी लेकर जाता रहा हूँ। बहुत अच्छी कीमतें हैं और इंतहाई कम रेट हैं। किसान सहूलत मरकज़ पर किसानों की आमद मुसलसल जारी है। यहाँ माहिरीन काश्तकारों को न सिर्फ सस्ती दवाइयाँ फराहम कर रहे हैं, बल्कि कीड़ों, बीमारियों और मौसमी तब्दीलियों से निपटने की अमली टिप्स भी दे रहे हैं। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। लोधरा में वज़ीर आला पंजाब के हिदायत पर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी में 3 रोज़ा मैंगो एंड फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला डाहा। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर लोधरा में मैंगो फेस्टिवल एंड फैमिली मेले में जनूबी पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पैदा होने वाले आम की इकसाम नुमाइश के लिए पेश की गई। मैंगो फेस्टिवल में शरीक आवाम की खसूसी तवज्जो अपनी जाने मबजूल कराने वाली मुनफरिद और नायाब सफ़ेद चौंसा की वैरायटी भी नुमाइश के लिए रखी गई। आमों की ये वैरायटी हासिल करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके अलावा आम की जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जो कि लोधरा में पैदा होती हैं, उन सब की नुमाइश भी की गई है ताकि बच्चों को और बड़ों को उन जो हैं वैरायटीज़ हैं उनसे रोशनास कराया जा सके। 15 के करीब मेरे पास वैरायटी हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन वैरायटी जो आजकल चल रही है वो चौंसा है। ये लोधरा के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा एक आगाज़ है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी जो लोधरा में जो ऐसे इवेंट जो है ना वो मुनक्किद होते रहेंगे। आइसक्रीम खा रहे हैं, मैंगो भी खा रहे हैं और ये हमारे लोधरा में पहली दफ़ा हो रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। मरियम नवाज जिंदाबाद। फेस्टिवल को सिर्फ आमों की नुमाइश तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि लोधरा की फैमिलीज़ की तफरीह के लिए खसूसी इंतज़ामात भी किए गए हैं। मेले में शरीक होने वालों का कहना है कि ऐसे फेस्टिवल ना सिर्फ आला मेयार के पाकिस्तानी आमों को फ़रोग देते हैं, बल्कि बच्चों की तफरीह और मकामी सकाफ़त को भी उजागर करने का बेहतरीन ज़रिया है। लोधरा में 3 रोज़ तक जारी रहने वाले इस मैंगो एंड फैमिली फेस्टिवल का मकसद
लोधरा के आलमी शहरत याफ्ता आमों की तशरीह, बागबानी के शोबे की हौसला अफजाई और शहरियों को सेहतमंद तफरीह फराहम करना है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोजेक्ट सर्विसेज ऑफिस UNOPS ने अमरीकी ताउन से $7.6 मिलियन मालियत का साफ पानी, सफाई और हिफ्ज़ान सेहत का मंसूबा मुकम्मल करके सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों के हवाले कर दिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे सईद वसीर। सेहतमंद जिंदगी के लिए साफ पानी एक बुनियादी जरूरत है, मगर जेर जमीन साफ पानी की सतह में मुसलसल कमी के बायस पाकिस्तान के कई इलाके आज भी इस नेमत से महरूम हैं। ऐसे में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अजला के अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। UNOPS के इस मनसूबे से जिला उमरकोट और जिला टांग के तकरीबन 3 लाख अफराद को पीने का साफ पानी और जदीद सफाई की सहूलियात मुयस्सर आ गई हैं। The water, the clean water that is being provided to communities which really did not have access before, both in Tank and in Umakot. So I think it's a very successful project and I think it's a very positive one which will improve the health. इस्लामाबाद में मुनक़्क़दा तकरीब का शुरका का कहना था कि साफ पानी घरों तक पहुँचने से ख़वातीन का कीमती वक्त भी बच रहा है, जिससे वो अब दूसरी मुफीद माशी सरगर्मियों में सर्फ कर रही हैं। I think this project is an incredible example of climate resilient infrastructure. What we have here is a water scheme that will continue to work even in the face of increasing temperatures. Even if there's floods, these water systems will continue to serve the people in the communities here. So that has improved the education of children, and girls have felt very safe to attend the school. That has increased the enrollment और health के जो issues हैं वो भी काफ़ी कम हुए हैं। ये मनसूबा सिर्फ साफ पानी की फराहमी तक महदूद नहीं, बल्कि सेहत, तालीम और पायदार तरक्की की जानिब एक अहम पेशरफ भी साबित होगा। सईद वजीर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। सऊदी अरब में पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी नुमाइश कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई, जिसमें सऊदी शहरियों, पाकिस्तानी कम्युनिटी, सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद बताएंगे इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्किदा 2 रोज़ा नुमाइश में पाकिस्तान की 17 मारूफ रियल एस्टेट कंपनियों ने अपने रहायशी, कमर्शल और हाउसिंग मंसूबे पेश किए, जबकि शुरका ने मुख्तलिफ सरमायाकारी के मौके में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। It's a very good opportunities for Saudi to invest. I'm sure the potential growth here is very high. इवेंट के अख्ताम पर पाइपेक्स इंटरनेशनल एक्सपो के सदर इमरान खटक ने शुरकाए नुमाइश कुनंदगान और मुआविन इदारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नुमाइश को तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों और सऊदी सरमायाकारों की भरपूर शिरकत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। पाइपेक्स का बेसिकली मतलब है पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन, और ये जो रोल प्ले कर रहा है दैट इज ब्रिज बिटवीन पाकिस्तानी डायस्पोरा एंड पाकिस्तानी डेवलपर्स। ये एक प्लेटफॉर्म है उन ओवरसीज के लिए जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और बड़ा अच्छा फुटफॉल है यहाँ पर। बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत आसानियाँ हमें यहाँ पर हुई हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर इंतजाम है। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, के लिए बहुत ही अच्छा क्राउड रहा है, और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मौका। सब जेन्युइन लोग हैं, और ये जो लोग प्रॉपर्टी यहाँ पर लेके आए हैं वो भी मैंने देखा है इनका, सबके स्टॉल पे भी मैं गया हूँ, ये भी बड़े माशाल्लाह एक से एक बढ़कर अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए हैं। नुमाइश में शरीक मुतअद्दिद सरमायाकारों ने पाकिस्तानी रियल एस्टेट मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार किया और इसे पाकिस्तान में सरमायाकारी के फरोग और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कौमी मईशत से जोड़ने की एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। वकार नसीम वामिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। खेल में खुशामदीद नाज़रीन। सेंट्रल एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप में श्रीलंका और काज़ाकिस्तान के दरमियान मुकाबला जारी है। पाकिस्तान अपने चौथे मैच में आज उज़्बेकिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगा। इस्लामाबाद में खेले जा रहे इवेंट के 10वें मैच में श्रीलंका ने काज़ाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले के बाद 3-0 से शिकस्त दी। श्रीलंका ने 25-22, 25-19 और 25-20 से फतह अपने नाम की। आज के दूसरे मैच में बांग्लादेश और नेपाल की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान अपना चौथा मैच आज उज़्बेकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान टीम अब तक अपने तीनों मैच जीतने में कामयाब हुई और पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त है। सेंट्रल एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। थैंक यू वेरी मच श्रीलंका रन्स अवे।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन मेज़बान टीम अपनी पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी रखेगी। मुकाबला शाम 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। तरोबा में खेले जा रहे मैच में पहले रोज़ खेल के इख्तिताम मेज़बान टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ओपनर्स बेंडन किंग 12 और टाइटीना रॉयन चंद्रपाल 21 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे आउट होने वाले बल्लेबाज आमिर जंगजू थे जो 21 रन बना सके, जबकि खियोम हौज 83 और शे होप 39 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 2 और आमिर जमाल ने 1 विकेट हासिल की। श्रीलंका विमेंस ने पाकिस्तान विमेंस को दूसरे वनडे मैच में 8 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। हिम्बनटोटा में खेले गए मैच में पाकिस्तान विमेंस ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 283 रन बनाए। सदर अमीन ने सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने उनके वनडे करियर की ये 7वीं सेंचुरी है। आयशा जफर ने 49 और मुनीबा अली ने 45 रन स्कोर किए। श्रीलंका विमेंस ने 274 रन का हदफ 46.5 ओवर्स में 2 विकेटों पर हासिल किया। श्रीलंका की जानिब से विशी गोतारने और हरीशा सिमारवा गर्मा ने सेंचुरियां स्कोर की। विशी गोतारने ने 123 और हरीशा ने 100 रन की इनिंग्स खेली। सीरीज का तीसरा मैच मंगल को हिम्बनटोटा में खेला जाएगा। ओमान के शहर मस्कत में मुनक्किदा मेंस एशियन हॉकी 5S चैंपियनशिप 2026 में पाकिस्तान मेंस हॉकी 5S टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया और FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान गैर मामूली महारत, अज़्म, डिसिप्लिन और फाइटिंग स्पिरिट का मुजाहिरा करते हुए एशिया की मजबूत तरीन टीमों को शिकस्त दी और फाइनल में रनर अप रही। इस शानदार कारकर्दगी के नतीजे में पाकिस्तान ने FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2026 में अपनी जगह पक्की कर ली है, जहां ग्रीन शर्ट्स आलमी स्टेज पर पाकिस्तान और एशिया की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान के लिए मजीद एजाज की बात यह रही कि अदील को टूर्नामेंट में उनकी शानदार कारकर्दगी, क़यादत और बेहतरीन खेल की बदौलत प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। उनका ये इनफरादी एजाज पाकिस्तानी हॉकी टैलेंट के आला मयार और टीम की इज्तिमाई काविशों का अक्कास है। फ्रांस के क्विंटन हॉलेज ने ATP ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत लिया है। फाइनल में दिफाई चैंपियन काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बबलिक को शिकस्त दी। किट्सबॉयल में खेले गए ATP 250 ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में क्विंटन हॉलेज ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए टॉप सीड और दिफाई चैंपियन काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बबलिक को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर करियर का पहला ATP टूर टाइटल जीता। आलमी नंबर 83 हॉलेज ने बबलिक को 6-4 और 7-6 से हराया। ये उनके करियर का सिर्फ दूसरा ATP टूर लेवल फाइनल था। इस फतह के बाद क्विंटन हॉलेज ATP रैंकिंग में 51वें नंबर पर पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल ताइवान की चो टाइन चिन और फ्रांस के तोमा पोपोव के दरमियान खेला जाएगा। ख़वातीन सिंगल्स फाइनल में चीन की चिन यूफी और जापान के एकाना यामागोची मद्दे मुकाबिल होंगे। चेंगडू में खेले जा रही चैंपियनशिप की मेंस सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में फ्रांस के तोमा पोपोव ने सेमीफाइनल में कनाडा के विक्टर लॉय को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। पोपोव ने पहली गेम 21-14 से हारने के बाद शानदार वापसी करते हुए अगली दोनों गेम्स 21-12 और 21-15 से जीतकर मैच अपने नाम किया। इस कामयाबी के साथ वो सुपर 1000 टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरे सेमीफाइनल में ताइवान के चुटाई चिन ने हमवतन लैन चॉन गी को स्ट्रेट गेम्स में 21-18 और 21-17 से शिकस्त दी। ख़वातीन सिंगल्स में मेज़बान चीन की चिन यूईफी ने जापान की तोमोका मियाज़ाकी को 21-17 और 21-15 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में जापान की इकाने यामागोची ने चीन की मुसलसल 2 बार की चैंपियन वांग जी यी को सनसनीखेज 3 गेम्स के मुकाबले के बाद 21-10, 6-21 और 21-16 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। साबिक हैवीवेट चैंपियन बरतानवी बॉक्सर एंथोनी जोशुआ ने अल्बानिया के क्रिस्टियान पेरेनेगा को नॉकआउट करके
فتح اپنے نام کر لی۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہونے والی دی کم بیک باؤٹ میں انتھونی جوشوا نے البانوی حریف کو کرسٹیان پنیگا کو دوسرے راؤنڈ میں ہی ناک آؤٹ کر کے شاندار فتح اپنے نام کی۔ مقابلے کے آغاز میں ہی پنیگا نے بھرپور حملہ کیا اور پہلے ہی 30 سیکنڈ کے اندر ایک زوردار رائٹ اوپر کٹ کے ذریعے جوشوا کو رنگ میں گرایا۔ پہلے راؤنڈ کے اختتام سے قبل جوشوا کو ایک بار پھر کاؤنٹ کا سامنا کرنا پڑا، تاہم وہ راؤنڈ مکمل کرنے میں کامیاب رہے۔ دوسرے راؤنڈ میں انتھونی جوشوا نے جارحانہ انداز اپنایا اور مسلسل طاقت رائٹ ہینڈ پنچز کے ذریعے پنیگا کو دباؤ میں لیا۔ البانوی باکسر مزید مزاحمت نہ کر سکے، جس پر ریفری نے مقابلہ روک کر جوشوا کو ناک آؤٹ کے ذریعے فاتح قرار دے دیا۔ 36 سالہ جوشوا کے لیے یہ مقابلہ جذباتی لحاظ سے بھی انتہائی اہم رہا، کیونکہ وہ دسمبر میں نائجیریا میں پیش آنے والے ٹریفک حادثے کے بعد پہلی بار رنگ میں اترے تھے۔ اس حادثے میں ان کے 2 قریبی دوست جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ جوشوا خود بھی زخمی ہوئے تھے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔